you all students of Standard 5th to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online video make class. And students, today we are going to learn about angles in Standard 5th in a mathematics subject. So today our topic is angle, and we already learned so many things about angle, okay, but we are once again observing angles in our daily life. First, we look around. If we look around us, we will see angles everywhere while you are observing fish and its mouth. So the angle is creating here this angle. Thereafter, plane, you must observe plane's picture or flying aeroplane there. So you will must observe the angles on different parts of the plane, and of course the Caesar सीजर से के मुंह से आप जो है तो अलग अलग टाइप के एंगल्स बनते हुए देखते हैं, है ना. सो दीज ऑल थिंग्स इन are the symbol of different type of angles. So first of all, we are supposed to understand what is an angle. So when two non-collinear rays joins with a common endpoint's origin, an angle is formed. You can observe here ray BC and ray BA is here. So while these two rays, means ray BA and ray BC, are two non-collinear rays, okay. So now you can see here how the angle is formed, okay. So this angle, so B जो point है, that point is a common end point, okay. That point is a common end point, and common end point is called the vertex of the angle, okay. So B is the vertex of angle ABC, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो मुश्तरका नुक्ता है, कॉमन एंड पॉइंट जिसे कहते हैं, है ना, तो मुश्तरका नुक्ता जिसे कहते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, बी है ना. तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये जो यहाँ पर ए बी है और ए सी है, तो ये दोनों के आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन एंड पॉइंट हमें बी मिल रहा है, ओके. क्या मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है. सो द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है. तो ये वर्टेक्स हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि वर्टेक्स हम जो है तो किसे कहते हैं, ठीक है. याद रखेंगे आप, उम्मीद है कि आप ज़रूर से इसे याद रखेंगे, जिसे हम उर्दू में रास या राशि नुक्ता कहते हैं. क्या कहते हैं, वर्टेक्स को हम रास या राशि नुक्ता, ठीक है. तो याद रखना है आपको, रास या राशि नुक्ता जो हम कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर बी देख रहे हैं हम, ये कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है. याद रखना है आपको इसे. सो रे बी एंड रे BA and ray BC are called the arms of the angle ABC. This is the basic knowledge of this angle. So students, you are supposed to learn this all information. Ray BA and ray BC are called the arms of angle A, B and C, okay. So now we can also think of an angle formed by rotating one ray away from its initial position. So you can see that rotating arms and fixed arms. So BC is the fixed arm here,
and you're looking there, BA is the rotating arm here. So students, this must be understand by you. To naming an angle, how to name the angles, we are supposed to know about that. So to name an angle, we name any point on one ray, then the vertex, and then any point on the other ray. So you know that on your screen, for example, angle ABC or angle CBA. How, suppose we have to read this one, this angle ABC and angle CBA. Okay, these are the examples of reading an angle. So we may also think, we may also name this angle only by single letter of the vertex. For example, angle B. ओके, सो किस तरह से हम पढ़ सकते हैं इसे, हम इसे जो है तो जो यहाँ पर मुश्तरक का नुक्ता होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बी देख रहे हैं, तो इसको हम जाविये का रास या रासी नुक्ता कहते हैं। तो हम जाविया बी से भी इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ओके, याद रखना है बच्चों इसे आपको। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, an angle divides the end point, an angle divides the points on the plane into three origins. Points lying on the angle, an angle ABC is here, and then the points within the angle is interior portion, like point F and point R is here. Okay, then points outside the angle is exterior angle, which is point P, X and T. These are the exterior points. So this is the additional information to you students. This information you will take in late after classes, but as far as this standard 5th is concerned, so interior and exterior of an angle is not in your portion, but we are going beyond this portion. So on your screen, measurement of an angle. So this is the connected information to you. Protractor is used to measure and draw angles. Angles are accurately measured in degree. So here you can observe this angle, that this angle is a 50 degree angle. Okay, so types of angle, we are supposed to know about the types of angles. So there are 4 main types of angles. First one is right angle, is on your screen. Then you will observe acute angle is on your screen, and obtuse angle is on your screen. Okay, so commonly these 3 angles are in standard 5th, and this one, 4th one, straight angle, is in a standard 6th. So these are the 4 main types of angle. एंगल राइट एंगल जिसे हम कायमा जाविया कहते हैं, एक्यूट एंगल यानी हादा जाविया, एब्ट्यूस एंगल यानी मुनफरजा जाविया, और स्ट्रेट एंगल यानी कि मुस्तकीम जाविया जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको ये जाविये। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है तो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जो जाविये होते हैं नॉर्मली कितनी डिग्री के होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल, an angle whose measure is a 90 degree. Now you are observing this angle is a 90 degree. Okay, you will see here this point is on a 90 degree. Okay, so this is a degree, and degree shows you this one is a 90 degree angle. Okay, so we mark like this for the 90 angle. Okay, so right angle, an angle whose measure is 90 degree. Okay, right angle measures always 90 degree. So which angle this one? Straight angle, right angle, acute angle or obtuse angle?
So what will be your answer? Your answer will be right angle. Okay, now examples for the right angles are on your screen. So you can see there are so many things which is on your screen, and these all things are related to our home. Okay, so you will observe on your door, on your TV, on your watch, or on your wall clock, on your table and chair, and on your photo, or any scenery picture which is on your wall and your house, right? So these things are where we found the right angle. You will see all which I marked it by a particular line. So you will see that these all are the right angle. Okay, so observe like this more things from your home. And now we are going to learn about obtuse angle, an angle whose measure is greater than a 90 degree. So you can observe here, this angle is showing you the 90, above 90. So this is this one is a 90 angle. Okay, and this one is going above from the 90 angle. So here is around 115 or before 120. This mark is okay. So obtuse angle measures greater than 90 and less than 180. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 180 का मार्क है, तो 180 से ज़्यादा और 180 से कम जो जाविया होता है आमतौर पर वो राइट एंगल होता है। ये सॉरी वो जाविया जो है तो मुनफरजा जाविया होता है, ठीक है। Obtuse angle, an angle whose measure is greater than 90 degree is called the obtuse angle. Okay, so we can find out that this one is a obtuse angle. Okay, this one is a obtuse angle. So here is the second one, and now we'll see some observation. We will see here some pictures which is showing you the obtuse angle. So here is parts of the plane. Here you can also observe, here you can see, and here also you can observe. The examples of obtuse angle is on your screen. So here are so many things which are the examples of obtuse angles. You may observe these all things in your house also. And now we'll move for the next one is here, that is which angle, what is it, which angle is on your screen. So from the degree you may understand the acute angle measure less than 90 degree. Okay, so it's acute angle, an angle whose measure is less than 90 degree is called the acute angle, है ना, जिस जाविये की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे से कम होती है नॉर्मली, वो जाविया कौन सा जाविया कहलाता है, वो जाविया हादा जाविया कहलाता है। ये देख सकते हैं हम, ये 90 डिग्री है। ओके, सो इसके नीचे जो यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 90 तक के अगर हम देखेंगे तो ये तमाम पैमाइश के जितने भी जाविये होंगे वो तमाम जाविये क्या कहलाएंगे, acute angle कहलाएंगे, हादा जाविये कहलाएंगे। ओके, an angle whose measure is less than 90 is called the acute angle. So what will be the answer for this angle? So acute angle is the answer for this on screen figure. And now we'll move for the next one, and the next one is on your screen, students. You are observing this pictures, and now you can mark the acute angle here. So you will see here the nose, and you will see the door of this cupboard, which is showing you the
acute angles. So these are the examples of acute angles. These are the examples of acute angles. Okay, यानी हम यहाँ पर देखते हैं ये हादा ज़ाविये की मिसालें हैं जो, ठीक है. And now we'll move for the next one. Next one is on your screen. The straight angle is here. So straight angle measures 180 degree. So you know that an angle whose measure is 180 degree is called the straight angle. So straight angle, यहाँ पर हम देख सकते हैं सीधी सीधी लकीर है ना, ये सीधा ख़त है इस तरह से खींचा हुआ, ठीक है. तो ये आप देखेंगे ये स्ट्रेट एंगल है. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 डिग्री में हमने देखा इस तरह से होता है ना, इसी तरह से 90 अबव है तो इस तरह से हो गया, ये मुनफरजा हो गया. और 90 से बिलो है, इस साइड में है तो ये हादा हो गया. और बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से सीधा है तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, मुस्तकीम ज़ाविया जिसे कहते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. ओके, so these are the information about angles. Okay, now we'll observe some picture here on your screen there. So you will see here, if you are observing a straight foot, that is a straight line, and a straight line is called the straight angle, right? And you will observe like these sceneries, you will see the sea, you will see the river like this, and you can see how straight lines are there of the waves of that sea or any water level there. So you can see that these all lines shows us the straight line. You can see the table tennis table also, the straight line is there. You can also mark that one on the road, how you, when you are traveling through any car, you will see there how they found the straight line on the road. Okay, so these are the examples for this one. Okay, examples of straight angle. Okay, now we are coming to our way, means the component of an angle and naming an angle. So just we observe it once again. We are going to learn about angle and how to name an angle is on your screen. Introduction to an angle. Okay, so आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ज़ाविये के अरकान और ज़ाविये का नाम जो है तो किस तरह से हम देते हैं उसे हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक ज़ाविया बना हुआ है ना, ज़ाविया PQR है ना, ठीक है. सो in the figure formed by two lines, segment QR and QP, QR and QP. Okay, so there is a common end point, Q is here, this one is a common end point. Okay, this one is a common end point. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ज़ाविये के तारुफ में हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता Q जो है, यहाँ पर ये नुक्ता Q से निकलने वाले दो कितात है. कौन सा किता है यहाँ पर, PQ है और एक QR है, ठीक है. और हम देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों से मिलकर एक ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है ना, ये ज़ाविया हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है इस तरह से, ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ज़ाविये के अरकान जो है, कंपोनेंट ऑफ एन एंगल. सो कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल, सेगमेंट QR एंड QP आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द साइड्स और आर्म ऑफ द एंगल्स. यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के QR और QP, ये जो दो ज़ाविये, जो इस ज़ाविये का हम मुशाहिदा करें जिसमें दो किता है, किता QP और QR है, तो हम देखेंगे कि ज़ाविये के ज़िले या साकें जिसे कहते हैं, है ना, आमतौर पर आर्म्स कहते हैं जिसे, आर्म्स एंड एंगल्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं,
ज़िले या साकें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द कॉमन एंड पॉइंट क्यू इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्यू है ये मुश्तरका नुक्ता है ना, ये दोनों किताब का मुश्तरक नुक्ता है यहाँ पर क्यू, ये क्यू जो है तो मुश्तरक नुक्ता है। तो हम देखेंगे मुश्तरका नुक्ते को हम जाविये का रास या रासी नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जाविये का रास या रासी नुक्ता कहते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं और उर्दू में से रास कहते हैं या रासी नुक्ता कहते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे। अब नेम ऑफ एन एंगल, अब ये जो एंगल है यहाँ पर जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस एंगल को हम नाम क्या देते हैं, किस तरह से हम पढ़ते हैं इसे? तो आप देखेंगे यहाँ पर द नेम ऑफ द एंगल, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी, द सिंबल इज हेयर ऑन स्क्रीन। सिंबल किस तरह का हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सिंबल का हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एंगल को बताने के लिए, ठीक है। द वर्ड एंगल यूजिंग द सिंबल वी राइट एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू पी हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि एंगल को बताने के लिए अब एंगल हम हर बार जाविया लिखेंगे क्या? नहीं, बल्कि जाविये के लिए अगर इस तरह की निशानी हमने लगा दी तो उससे हमें जाविया लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम एवरी टाइम क्या लिखेंगे? जाविया पी क्यू आर, इस तरह से जाविया आर क्यू पी, इस तरह से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पर तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि इस जाविये को जब हमें पढ़ना होगा तो किस तरह से पढ़ेंगे हम? जाविया क्यू पी, जाविया पी क्यू आर और जाविया आर क्यू पी, इस तरह से हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और इसमें वर्टेक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम ये क्यू जो है तो इसका वर्टेक्स है। और इसमें अगर हम यहाँ पर किताब देखेंगे, सेगमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पी क्यू दिखाई दे रहा है हमें और सेगमेंट क्यू आर हमें दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से। तो बच्चों ये जो है तो बेसिक नॉलेज है, ये हमें रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूर से आपको इसे समझना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है तो प्रॉब्लम सेट पर आते हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है। क्या करना है हमें यहाँ पर? ये टेबल को कंप्लीट करना है। सो टेबल इज़ ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 24, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है तो 3 आपको यहाँ पर फिगर नज़र आ रहे हैं ना, 3 शक्लें आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे जो है तो जावियों के नाम देना है आपको, नेम ऑफ द एंगल है। देन जाविये का रासी नुक्ता आपको बताना है यानी वर्टेक्स, और उसके बाद आपको जाविये की साँकें बताना है यानी साइड ऑफ एन एंगल, ओके। सो सबसे पहले स्क्रीन पर जो पिक्चर है हमारे, जो यहाँ पर फिगर है, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द एन एंगल लेते हैं। सो एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी, इस तरह से इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, जाविया आर क्यू पी या जाविया पी क्यू आर, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम राशि नुक्ता देखते हैं, वर्टेक्स देखते हैं, तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पर? ये वर्टेक्स है, ठीक है। सो वर्टेक्स यहाँ पर क्यू है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे साइड ऑफ द एंगल, यानी जाविये की साँकें अगर हम देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर साइड क्यू पी एंड साइड क्यू आर, साइड क्यू पी, ये जो साइड है ये हो गई, और साइड क्यू आर यानी कि ये साइड है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है जाविया एल एम एन, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे, नेम ऑफ द एंगल, और जाविया एन एन किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे यहाँ पर नाम एन देना है, ओके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसे जाविया एल एम एन और जाविया एन एम एल, इस तरह से पढ़ सकते हैं हम इसे दोनों तरीके से, ना, एंगल एल एम एन और एंगल एन एम एल, इस तरह से भी हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और इसका वर्टेक्स अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर
एम इसका वर्टिक्स मिलेगा, यानी राशि नुक्ता जो है इस जाविये का वो एम होगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएंगे कि साइड एम एल एंड साइड एम एन, इस तरह से इसकी जो है तो दो साखें हैं। साख कौन सी है? एक साख एम एल है और एक साख कौन सी है? एम एन है, ठीक है। तो इसे हम साख कहते हैं। साइड को हम क्या कहते हैं आमतौर पर? साख कहते हैं, याद रखना है। साख एम एन और साख एम एल, इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और जो लास्ट फिगर है इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर। इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पढ़ना है नेम ऑफ द एंगल, तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे, एंगल एस यू टी, या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं एंगल टी यू एस, इस तरह भी पढ़ सकते हैं ना। शुरुआत राइट से भी कर सकते हैं आप, लेफ्ट से भी कर सकते हो, ओके। सो जाविया एस यू टी और जाविया टी यू एस, इस तरह से हम दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका वर्टिक्स अगर हम देखेंगे तो वर्टिक्स हमें क्या दिखाई देगा? इसका वर्टिक्स होगा यू। क्या होगा इसका वर्टिक्स? यू होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे पढ़ते हैं तो साइड ऑफ द एंगल किस तरह से पढ़ते हैं? साइड यू एस एंड साइड यू टी, साक यू एस और साक यू टी, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया इस पर तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हम जो है तो इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज के सेशन में जो कुछ भी मालूमात हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। अब आपको मज़ीद जो है तो ये सवालात जो हमने यहाँ पर हल किए हैं स्क्रीन पर, इन्हें दोबारा से आप अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।